Hello everyone, welcome back to my channel. This is a requested video by one of my viewers who wanted me to make a complete video on all Bible translations of English literature because this is a topic which is repeatedly asked in UGC NET exams. Along with the Bible translations, she also wanted me to give a short trick to remember all the Bible translations. Now, personally, I have never used any trick to remember something. What I used to do is make a story out of any important topic and use that story as a mind map to retrieve information. I am going to do the same for you people in this video, where I'm going to bring in front of you a short linear Bible translation story which will help you to create a mind map into your mind, and also you will be able to retrieve the information as I did in my exams. So on that note, we are not going to waste any further time and start with our video. So before jumping into the video, I want to tell you that I have put a lot of hard work into making this slide, as it contains all my handwritten notes plus all the important sources of Bible translations. So do be a part of this Bible, as it is definitely going to benefit you, and I can also claim on that you are not going to get this information anywhere else. And also I want to tell you that in this slide you are able to see two colors, black and red. Black will consist of the history of the Bible translations, whereas all the red points will be important from the net point of view. So you can enjoy the story or the linear formations of Bible translations along with maintaining your notes and also knowing only those important points which are important from net point of view. So it is like एक तीर से दो निशाने. On that note, we'll start with our Bible translations. सबसे पहले तो आपको Bible translation की original language पता होनी चाहिए, which is Hebrew. आपकी जो बाइबल है which was originally written, it was written in the language Hebrew. ये आपको याद रखना है. Starting from the beginning, we have 1400 BC, where the first written word of God, the 10 commandments, were delivered to Moses. Moses आपके हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट ज्यूइश प्रॉफिट माने जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि भगवान ने अपने वो 10 कमांडमेंट्स दी थी एंड ही मेड ऑल दोस टीचिंग्स ऑफ गॉड इनटू द बाइबल. सो दैट इज द फर्स्ट बाइबल दैट वाज एवर रिटन. आगे बढ़ते हैं 500 बीसी में. आपकी वो जो ओरिजिनल बाइबल थी जो मॉसेस को बताई गई थी, वो एक पूरे मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में आपकी 500 बीसी तक तैयार हो जाती है, जिसमें होती हैं आपकी 39 बुक्स. इस वर्जन ऑफ द बाइबल को कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट. ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग होती है आपकी हेब्रू ओरिजिनल लैंग्वेज से, भगवान के कमांडमेंट से. देन आपके 500 बीसी आते आते इसको पूरी तरीके से एक मैन्यूस्क्रिप्टेड फॉर्म में बनाया जाता है, लिखा जाता है, जिसको कहा जाता है ओल्ड टेस्टामेंट. आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे बड़ा चेंज हम लोग 200 बीसी में पहला चेंज या पहला ट्रांसलेशन जो देखते हैं उसको कहते हैं हम लोग सेप्टुआजेंट ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट. ये आपकी बाइबल का सबसे पहला ट्रांसलेशन माना जाता है फ्रॉम हेब्रू लैंग्वेज टू ग्रीक लैंग्वेज. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. देन फर्स्ट सेंचुरी एडी आ जाता है एंड ये टाइम है आपके टाइम ऑफ जीसस का. आप ध्यान रखिएगा, अभी भी आपकी ओल्ड टेस्टामेंट चल रही है, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुकी है. देन जीसस के जानने के बाद 100 एडी में जो जीसस के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो जीसस की कही हुई टीचिंग्स एंड बातों को और ओल्ड टेस्टामेंट की टीचिंग्स को एक साथ क्लब और अमेलगमेट करते हैं और आपकी प्रिपेयर हो जाती है न्यू टेस्टामेंट. देन आगे बढ़ते ही 300 एडी में आपकी ये जो न्यू टेस्टामेंट है, इट इज यूज्ड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स बाय ऑल चर्च पीपल एंड ऑल चर्च काउंसिल्स, और इसको ही एक्सेप्ट किया जाता है. देन हमारे 382 एडी में आता है एक बहुत बड़ा चेंज कि जो न्यू टेस्टामेंट है उसको जीरोम नाम का एक प्रॉफिट और स्कॉलर आता है, जो इस ग्रीक बाइबल को कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है लेटिन बाइबल में. ये हो गया आपका थर्ड ट्रांसलेशन. अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेरोम का ट्रांसलेशन, बिकॉज इस ट्रांसलेशन को पूरा करने में इनको लग गए 23 ईयर्स और इस लैंग्वेज को
इस बाइबल को कहा गया लैटिन वल्गेट बाइबल। अब आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और ओल्ड मिडिल लैंग्वेज को आपने पढ़ा होगा, ब्रिटिश लिटरेचर को आपने मिडिवल एरा से ही स्टार्ट किया होगा, वहां पे आपने लैटिन वल्गेट लैंग्वेज के यूज को बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, जो कि मिडिवल लैंग्वेज की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो 500 एडी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं कि तब के टाइम तक हमारे 382 से 500 एडी तक आपकी लैटिन लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक्सेप्टेड लैंग्वेज थी तब के टाइम पे, और सारे स्क्रिप्चर्स के लिए उसी को यूज किया जाता था। आगे देखते हैं क्या होता है। 600 एडी आ जाता है और तब तक ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी आ चुकी है। अब किसकी वजह से क्रिश्चियनिटी आई है? 596 एडी में आते हैं आपके सेंट ऑगस्टीन, ये अपने साथ लेके आते हैं क्रिश्चियनिटी को और उसको स्प्रेड करते हैं आपके ब्रिटेन में। उसी दौरान आते हैं आपके 3 मेजर राइटर्स, जो कि हैं आपके कैडमॉन, आपके एडम बेड और अल्फ्रेड द ग्रेट। अब कैडमॉन क्योंकि एक राइटर नहीं थे, तब तक राइटिंग का इतना इंग्लैंड में स्किल नहीं था, तो ये एक इलिटरेट पोएट आप कह सकते हैं, जो उसी बाइबल के पोर्शंस को लोगों को गाना गा गा के एंग्लो इंग्लिश लैंग्वेज में बताने लगे थे। अभी ये सिर्फ गाना गा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और एडम बीट को देखते हैं, उसी बाइबल के कुछ पोर्शंस को ये ओल्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करने लगे थे। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्फ्रेड द ग्रेट आते हैं, who was the supporter of old English language, translate a good portion of the Bible। तो हम लोग इंग्लिश के ट्रांसलेशंस को अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे पनपने लगा है। देन अचानक से 1066 एडी में होता है आपका नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद आता है आपका नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के आते ही आपकी जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रांसलेशंस या जो कुछ भी चल रहा था वो वहीं पे रुक जाता है, और आपकी जो फ्रेंच है वो इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है, जिसके बाद से ना कोई इंग्लिश बाइबल लिखी जाएगी ना ही ट्रांसलेट की जाएगी अंटिल 1300 एडी। अब 1300 एडी में ऐसा क्या कमाल हुआ, आप सबको पता है कि कौन आए थे? चौसर। चौसर ने लैटिन लैंग्वेज को ना यूज करके आपकी मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को जिस तरीके से पॉपुलराइज किया, उसके इफेक्ट की वजह से आगे जाके आपको बाइबल के इंग्लिश ट्रांसलेशंस को देखने मिलते हैं। कैंटरबरी टेल्स, आपको पता होगा कि किस तरीके से कैंटरबरी टेल्स के आने के बाद हमारी जो ओल्ड मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज है वो पॉपुलराइज हो गई थी। अब लैंग्वेज पॉपुलराइज हो गई थी तो क्या आपके बाइबल के इंग्लिश ट्रांसलेशंस बनने लगे? लेट्स टेक अ लुक। 1382 में आते हैं आपके विक्लिफ, ये आपकी बाइबल को ट्रांसलेट करते हैं लैटिन वल्गेट लैंग्वेज से इंग्लिश में। अब ऐसा करने की इनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही सारे ऑफिशियल्स को पता लगता है कि विक्लिफ नाम का एक प्रॉफिट है, एक स्कॉलर है, वो हमारी लैटिन वल्गेट लैंग्वेज को, जो कि लैंग्वेज सिर्फ इलाइट पीपल, चर्च के पीपल को समझ में आती थी और कॉमनर्स को नहीं समझ में आती थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है, उनको हेरेटिक करार कर दिया गया। हेरेटिक का मतलब होता है पाखंडी या विधर्मी, जो धर्म के खिलाफ जाता है। अब धर्म के खिलाफ उन्होंने जाने वाली ऐसी कौन सी बात की थी? ऐसा इसलिए है कि लैटिन उस टाइम की पावरफुल पीपल की लैंग्वेज थी, एंड बाइबल में जो कुछ भी लिखा था वो कॉमनर्स को समझ में नहीं आता था। तो जितने भी चर्च एंड पोप के लोग, चर्च के लोग थे, पोप एंड पैपल पीपल, वो उस लैंग्वेज का यूज करके उन कॉमन लोगों को अपने पावर्स के लिए यूज करते थे। उनको झूठ बताते थे कि भगवान आपसे ये चाहता है, आपको ये करना चाहिए, एंड उनका गलत इस्तेमाल करते थे। ये करप्शन देखने के बाद विक्लिफ वांटेड कि भगवान की जो टीचिंग्स हैं वो एक कॉमन इंसान तक पहुंचनी चाहिए, एंड हेंस उन्होंने लैटिन वल्गेट लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट की पूरी बाइबल को और लोगों तक पहुंचाने लगे। जब उन्होंने ये काम किया और उनकी बाइबल जो कहलाई वो विक्लिफ बाइबल कहलाई, उस बाइबल को पकड़ा गया, बैन कर दिया गया, उसको बर्न कर दिया गया, और आपके जो विक्लिफ हैं उनको हेरेटिक करार कर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में उनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके भी बारे में आपको पता होगा, जिन्होंने उस बाइबल के ट्रांसलेशंस को लोगों तक पहुंचाते रहे, उनको एक डेरोगेटरी टर्म मिला विच इज नोन एज लोलार्ड्स। ओके,
तो 1408 में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये पूरे इवेंट को होने के बाद से रूल निकल गया कि इंग्लैंड में इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाइबल को पढ़ा भी नहीं जाएगा और ना ही ट्रांसलेट किया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो वो इलीगल माना जाएगा। आप बिशप की और किंग की परमिशन के बिना ये काम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, 1455 में जर्मनी का सबसे पहला इन्वेंशन हुआ विच वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, जोहान गटनबर्ग ने किया था। और 1456 एग्जैक्टली एक साल के बाद आपकी गटनबर्ग बाइबल को प्रिंट किया गया। दिस वॉज द फर्स्ट एवर प्रिंटेड बाइबल। अभी तक आप ध्यान दीजिएगा, जितनी भी बाइबल के ट्रांसलेशंस देख रहे थे, सुन रहे थे, वो हैंड रिटन थी। लेकिन 1455 में प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से आपकी 1456 एडी में गटनबर्ग बाइबल एक नया ट्रांसलेशन, एक नया प्रिंटेड वर्जन आता है, जिसको हम लोग गटनबर्ग बाइबल के नाम से जानते हैं। देन आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस का अब जो स्ट्रीम है वो चलने लगेगी। अब आप इंग्लिश ट्रांसलेशंस को बहुत इजीली देख पाएंगे। लेकिन इससे पहले एक मेजर इवेंट आने वाला है। 1516 एडी में आते हैं आपके इरास्मस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रीस्ट थे जिन्होंने करंट बाइबल को ग्रीक एडिशन और लेटिन एडिशन में फिर से एक्यूरेटली पब्लिश किया। अब इन्होंने वही सेम बाइबल उठाई और ग्रीक बाइबल उठाई, नॉट विक्लिफ्स बाइबल, उसका एक ग्रीक एडिशन निकाला और लेटिन का एक एक्यूरेट वर्जन निकाला, जिसको न्यू टेस्टामेंट भी हम लोग बोलते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट है, अब ये जो आपके इरास्मस है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनका जो वर्जन इन्होंने पब्लिश किया था या निकाला था, वो आगे जाके आपके मार्टिन लूथर यूज करते हैं, विलियम टिंडेल यूज करते हैं, और किंग जेम्स जो कि ऑथराइज्ड वर्जन माना जाता है, वो भी यूज करते हैं। तो इमीडिएटली इनके बाद 1522 में आपके मार्टिन लूथर आते हैं और वो ट्रांसलेट करते हैं न्यू टेस्टामेंट इनटू जर्मनी। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में चेंज करते हैं, इंग्लिश में नहीं। देन 1525 में आते हैं आपके विलियम टिंडेल। ये ट्रांसलेट करते हैं न्यू टेस्टामेंट को, बट इनको अप्रूवल नहीं मिलता है इंग्लैंड में इसको पब्लिश करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये जर्मनी चले जाते हैं, वहां पे इन बाइबल्स को पब्लिश कराते हैं और उन बाइबल्स को इंग्लैंड तक स्मगल करा के ले आते हैं। पर वो पकड़े जाते हैं और उनको पकड़ा जाता है और उनको बर्न कर दिया जाता है। टिंडेल को, ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश बाइबल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बाइबल है वो आगे जाके किंग जेम्स बाइबल का वर्जन बन जाएगी। ओके, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जिन भी लोगों ने ट्रांसलेशंस किए हैं उनके साथ कितना बुरा किया जा रहा है। 1535 में आती है आपकी कवरडेल बाइबल, जो कि मानी जाती है फर्स्ट कंप्लीट बाइबल प्रिंटेड इन इंग्लिश। अभी तक आप जितने भी इंग्लिश ट्रांसलेशंस देख रहे थे वो प्रिंट नहीं कराई गई थी, तो आपकी कवरडेल बाइबल बन जाती है प्रिंटेड बाइबल, जो कि आपकी फर्स्ट इंग्लिश कंप्लीट बाइबल मानी जाती है। अब ये क्यों प्रिंट हो पाई थी? क्योंकि इट वाज ट्रांसलेटेड बाय माइल्स कवरडेल एंड डेडिकेटेड टू एन बुलीन, किंग हेनरी सेवेंथ वाइफ। अब अगर इनके लिए ट्रांसलेट की जाए तो ठीक है, तब बर्न नहीं की जाएगी एंड उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। देन 1537 में आती है आपकी मैथ्यू बाइबल, जिसको कहा जाता है फर्स्ट बाइबल पब्लिश्ड विद किंग्स परमिशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है जो कि नेट के क्वेश्चन में आ सकता है कि विच वाज दैट फर्स्ट बाइबल विच वाज पब्लिश्ड विद किंग्स परमिशन। देन हम लोग 1539 में आगे बढ़ते हैं और पब्लिश होती है आपकी ग्रेट बाइबल। अब ये बाइबल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको चेन्ड बाइबल कहा जाता है। ये बताया जाता है कि ये जो बाइबल थी वो चर्च के टावर्स के साथ चेन कर दी गई थी कि कोई भी इसको चुरा के भाग ना सके, और जिसको पढ़ना हो वो यहाँ आके पढ़े, घर न ले जा पाए, ज्यादा बाइबल के बारे में जानने की कोशिश ना करे। 1555 एडी में एक बड़ा चेंज आता है। आती हैं आपकी क्वीन मेरी, जो कि जानी जाती हैं ब्लडी मैरी के नाम से। अब ये एक कैथोलिक थी और हमेशा गुस्से में रहती थी। तो आते ही इन्होंने प्रोटेस्टेंट ट्रांसलेशंस ऑफ ऑल द बाइबल्स को जला दिया और जितने भी आपके प्रोटेस्टेंट लोग थे उनको भी मरवा दिया। न जाने कितने लोगों को इन्होंने अपने गुस्से की वजह से मरवाया। तो जितने भी लोग थे जो एग्जाइल में थे वो किसी तरीके से इंग्लैंड छोड़ के भागे जिनेवा।
उसके बाद क्या हुआ, जिनेवा जाने के बाद अब बाइबल तो हर जगह चाहिए, तो उन्होंने जाके बाइबल वहां पर लिखी, विच वॉज लेटर नोन एज योर जिनेवा बाइबल। ये आपका एक ट्रांसलेशन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1568 में आती है आपकी बिशप्स बाइबल, जो कि एक न्यू ट्रांसलेशन है, जो कि क्वीन मेरी के जाने के बाद से जो उनकी बहन आई क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने लिखवाना स्टार्ट किया। देन आपकी 1582 में आती है रेम्स दुआई बाइबल, जो कि स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन मानी जाती है कैथोलिक पीपल के लिए। ओके, 1611 में आता है एक बहुत बड़ा ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं किंग जेम्स बाइबल और द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। अभी तक जितने भी प्रॉफिट, जितने भी स्कॉलर्स लिख रहे थे, समझदार लोग लिख रहे थे, उसको ऑथराइज नहीं किया या माना जा रहा था। किंग ने बाइबल लिखी है तो वो ऑथराइज्ड वर्जन बन गई। किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड along with 54 scholars translated the bishops and Tyndale Bible, which will be revised several times। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपने इतने सारे ट्रांसलेशंस देखे बाइबल के, आगे भी बाइबल के बहुत सारे ट्रांसलेशंस हुए हैं 1611 से आपके 2005 तक आगे भी हुए हैं। बट 2004 में आता है आपका हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, इसका नेम जानना बस इंपॉर्टेंट है। एंड 2005 का न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन NET नेट अवेलेबल ओनली ऑन इंटरनेट। ये जो आपका ट्रांसलेशन है न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इट इज ओनली अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। सो दैट वाज इट फॉर ऑल द ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल। इस पेज में आपको सारा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, विच इज इंपॉर्टेंट बाइबल्स फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू। आई थॉट कि वो इंफॉर्मेशन आप एक बार पढ़ेंगे लेकिन आपको डिफिकल्टी होगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छांटने में। सो दैट ऑल्सो आई हैव डन फॉर यू। सबसे पहले आपकी आ जाती है 10 कमांडमेंट्स, देन आपकी आ जाती है ओल्ड टेस्टामेंट, फिर आती है आपकी न्यू टेस्टामेंट, फिर आती है आपकी लेटिन वल्गेट, देन आपकी विक्लिफ की हैंड रिटन कॉपी आ जाती है। 1456 में गटनबर्ग बाइबल आ जाती है। देन यहाँ पे दी हुई है 1560 में जिनेवा बाइबल, जिसमें आई वांट टू मेक कि यहाँ पे आपकी आ जाएगी कवरडेल बाइबल। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइडेड है, आप उसको देख लीजिएगा। देन आपकी आती है जिनेवा बाइबल एंड लास्टली आपकी आती है किंग जेम्स ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। So that was it for the Bible translations. I hope ये जिसको भी वीडियो मिलेगा उसको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। लिटरेचर के हर स्टूडेंट के लिए ये जो वीडियो है ये एक कंप्लीट वीडियो है ऑन द टॉपिक ऑफ बाइबल ट्रांसलेशंस। इसको करने के बाद आप जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे एंड आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। इफ यू वांट me to make such videos, requested videos, जहाँ पे आपके किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो आपको समझ में ना आ रहा हो, जिसका आपको कंटेंट ना मिल रहा हो, आप चाहते हैं कि I should make a video on it, so you can comment down below and I will surely take some time and make a worthy video for you people. So on that note, I am going to end this video expecting and hoping that you must have liked the video. आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में? Do comment down below and tell me, because your feedback is going to tell me what exactly you people are thinking and how exactly you are receiving my content. It will be very thoughtful of you if you hit the like button and subscribe to my channel. Share this with your friends, whoever is a part of UGC NET or is a literature student in general. Do give me your valuable feedback and also hit the notification bell, as every day I am coming up with different important series and important videos. So on that note, I will take your leave and I will meet you up next in yet another important and worthy content for you people. So take care and bye.